8. Today we are on lecture number 2 of chapter number 8, that is the role of parliament in democratic country. One of the interesting, one of the important chapter and concept that what we are learning in this concept. Okay, please take in consideration that this is a very important chapter. Throughout of your life it will help you. Whatever the point what we are learning, what we are discussing, that will help you. Not for your exam purpose but for your higher classes as well as for your future life also. See the basic point why it is so important, let me tell you. As we are talking about the role of parliament, India is a democratic country, okay, and most of the countries are democratic country. So what is the importance of parliament, what the parliament actually is and how it's work? This basic information what we will going to talk. See, I can be very much sure maybe your parents and family members, elderly people, those ages more than 18, they are casting their vote. It's our fundamental duty as well as fundamental right. But I am sure that they will also not aware about the basic information of the parliament. संसद किसको कहा जाता है, संसद का कार्य क्या है, संसद कैसे बनती है, what is the work, what are the duties, how it's work. So this information is very important as a citizen of the country. See, these all are the basic information, at least as it's in a democratic country, we the people, we rule. It's our nation, we are the decision maker. So at least we should know that the legislative body, how they work, संसद क्या है, कैसे काम करती है. संसद है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सर्वोच्च संस्था होती है, सुप्रीम इंस्टीट्यूट होती है. सो हाउ इट इज वर्क, एटलीस्ट वी शुड नो. सो दिस ऑल आर द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट एटलीस्ट आइडिया एटलीस्ट वी शुड हैव. एंड एज यू गो इन डीप, आप जितनी इसके अंदर जाओगे यू विल एंजॉय अ लॉट. यू नो, इलेक्शन held होते हैं at every 5 years we are having election. So how, what is the procedure of the election, how we elect the member. number of time आप गाड़ी में देखते हो कि MP की गाड़ी है, MLA की गाड़ी है, तो what is this MP, what is a MLA, what they have to do, उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, उनको इतनी सैलरी मिलती है तो what they do. So this all information we should know. In the democratic country, what we, after election we elect our representative. So when we are electing our representative, so what they have to do, वो करते क्या है, हमने जिसको वोट दिया अल्टीमेटली वोट देके उनका काम क्या है, what they are doing, how they work, where they work. So this point we should know. See, as it is our moral responsibility, it is our fundamental duty and responsibility to understand the basic idea as we are responsible citizen. Okay, whatever the decision is taken by the ordinary man, ultimately, like you know, it will affect in the organizing or in the government. So बहुत सोच समझ के हमेशा we have to work accordingly. If you remember in previous lecture, first of all we start with a democratic country. Democracy means लोकशाही, लोकशाही जहाँ पे लोगों के द्वारा, the government which like by the people, for the people, of the people. Okay, that is the simplest term of a democracy. It means by the people, for the people and of the people. लोगों के द्वारा जहाँ पे राज्य होता है, indirectly the public is ruling, so that what we say is the democracy country. Now form of government, we know there are two types of form of government. One is of monarchy. Monarchy मतलब राजतंत्र. राजतंत्र means king or queen rule at the particular place. And one is a democratic country. Okay, one is a democracy. Now in the Rajtantra or in monarchy
queen. They take advice from their ministers, councils, minister. Okay, but ultimately decision making lie with the king or queen, or it's a central decision making होता है. But in democracy, democracy means what? The ruling by the people, for the people, of the people. So every citizen of the country is having a right to cast their vote, and they are equally participate or equally responsible in the decision making of the country. ओके, भारत का, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो भारत का हर एक नागरिक जो 18 साल और उससे ऊपर है, द citizen who is having the right to vote, cast their vote, indirectly they are the decision maker. So in democracy also we talk about the two type. One is a parliamentary government and the presidential government. Okay, presidential ऐसे अमेरिका के अंदर presidential government है, इंडिया के अंदर parliament है. That is why we are talking about the parliament government. Okay, and even in that we talk about the two way. One is a unitary government and second is a federal state. So unitary government means what? जहाँ पे a kind of government in a system which a single power which is known as the central government. एक ही government होती है, central government. But in the federal state में क्या होता है? The federal government is composed of the three distinct branches: executive, legislative and the judicial. First is the legislative. Legislative means जो कायदा बनाती है. एग्जीक्यूटिव मतलब उसको एग्जीक्यूट करवाती है, कायदा बन गया, उसका अमल करवाने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी का होता है. एंड जुडिशरी, इफ द अदर ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग इन द प्रॉपर मैनर, सो जुडिशरी मतलब कायदा कानून आता है. सो थ्री डिस्टिंक्ट ब्रांच काम करती है. ओके, नाउ हाउ इज द पार्लियामेंट फॉर्म? नाउ द क्वेश्चन कम, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट. How is the parliament formed? ना ये क्वेश्चन हमें होना चाहिए कि पार्लियामेंट कैसे बनती है. चलो पार्लियामेंट है, भारत डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है. पार्लियामेंट मतलब संसद, पार्लियामेंट मतलब संसद. तो संसद सभा, संसद कैसे बनती है, संसद क्या है, हाउ इट इज फॉर्म? अब ये आप अगर न्यूज में देखते होंगे तो आज जैसे अभी चौमासु सत्र जिसको मॉनसून सेशन कहा जाता है, अभी वो चालू है. ओके, एंड संसद के अंदर क्या काम होता है, आपने अगर कभी काफी बार टीवी में या तो वीडियो क्लिप्स में देखा होगा कि बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे स्पीकर बैठे होते हैं, ऑपोजिट पार्टी एंड द रूलिंग पार्टी सामने डिबेट करते हैं. ओके, एंड डिसीजन मेकिंग, इट्स अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इट्स अ डिसीजन मेकर बॉडी. ओके, सो इंडिया हैज एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. सो द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूट इन इंडिया. सी फर्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट इज the supreme institute. Parliament is a supreme institution Parliament. See, why I am writing this point, even you should write in your book, institution in India. Now see, this is the supreme. Supreme मतलब क्या? सबसे बड़ी संस्था, सर्वोच्च संस्था. सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट. भारत का हर एक कायदा कहाँ पे बनता है? इट इज मेड इन अ पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया.
body. Now India is adopted the parliamentary form of democracy. The parliament is the supreme institution in India. The parliament of India consists of the president and the two house, Lok Sabha and Rajya Sabha. Now this is the most important point. पार्लियामेंट मीन्स व्हाट? पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन आपको याद रखने हैं। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सी स्टूडेंट, ये चीज आपके दिमाग में लाइफ टाइम बिठा दो। पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद मतलब क्या? सी एज ए ह्यूमन बॉडी, ओके, वी आर ह्यूमन, सो ह्यूमन वर्ड मीन्स व्हाट? वी आर हैविंग डिफरेंट सेंस ऑर्गन, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, जो मिला के एक इंसान बनाता है। सेम पार्लियामेंट मीन्स व्हाट? पार्लियामेंट मीन्स इन द सिंपलेस्ट टर्म, students pay your attention, very important concept to learn, to remember lifetime. पार्लियामेंट में 3 चीजें होती है। पार्लियामेंट कैसे बनती है? पार्लियामेंट मीन्स पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा हो, लोकसभा होगी, प्रेसिडेंट होंगे और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, एक को भी आप निकाल नहीं सकते। प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा लोअर हाउस, पार्लियामेंट, राज्यसभा मतलब अपर हाउस मतलब पार्लियामेंट। अब लोकसभा का दूसरा नाम है लोअर हाउस, लोअर हाउस, लोअर हाउस भी कहा जाएगा और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाएगा। राज्यसभा मतलब अपर हाउस, लोकसभा मतलब लोअर हाउस। एल एल याद रख देना अगर याद नहीं रहता है तो। पार्लियामेंट मींस इट्स मेड अप विद 3 ऑर्गन, लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा। लोकसभा मतलब लोअर हाउस, प्रेसिडेंट, राज्यसभा मतलब अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है, उसके टोटल सीट कितनी है, ये आपको कंपल्सरी याद रखना है। इट इज नॉट ओनली फॉर दिस क्लास, नॉट फॉर 9, 10, 11, 12, बट फॉर योर फ्यूचर आइडिया ऑल्सो। सो पार्लियामेंट नंबर 1, लोकसभा मतलब लोअर हाउस। व्हाट इज अदर नेम? लोकसभा मतलब लोअर हाउस। टोटल सीट याद रखनी है, टोटल सीट्स 545। गुजरात की सीट 26। 545 मतलब क्या? टोटल हम जो इलेक्शन करते हैं हर एक स्टेट को उसकी सीट दी गई होती है। जैसे गुजरात की सीट है 26, मतलब गुजरात में से 26 लीडर रिप्रेजेंटेटिव कहां पे जाएंगे? लोकसभा में। पूरे देश में कितने स्टेट है? 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी। ओके, सो लोकसभा मतलब एक पूरी सभा है। ओके, वहां पे टोटल मेंबर कितने होंगे, कितने लोग वहां पे एज ए लीडर बैठते हैं, काम करते हैं? 545। सी स्टूडेंट, हमारी जो इलेक्शन होती है हर 5 साल में, जिसमें हम लोकसभा के जो लीडर हम जिसको वोट करते, कास्ट करते, ओके, तो उसके अंदर जो इलेक्ट होता है, ऐसे सब मेंबर
लोकसभा में जाते, दोस आर द डायरेक्टली सिलेक्टेड, जिनको लोग डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करते हैं। सो डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट वोटिंग में जो जीते हैं, ऐसे कितने लोग संसद में बैठेंगे? लोकसभा में 545, 545। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हुई लोकसभा की, लोअर हाउस की? 545। उसमें से गुजरात में कितने लोग जाते हैं? गुजरात के 26। लाइफ टाइम याद रखना है, टोटल सीट 545, गुजरात का रिप्रेजेंटेशन है 26। टोटल 545, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुजरात इज 26। लोकसभा मतलब जो डायरेक्ट इलेक्शन से रिप्रेजेंटेशन जाता है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा में जाते हैं, दैट कॉल सेज द, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड इज राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। क्या कहा जाएगा? अपर हाउस। अब टोटल सीट कितनी? 250। और गुजरात का हमारा 11। अब राज्यसभा क्या है? राज्यसभा मतलब अपर हाउस। अब ये जो 545 जो मेंबर होते हैं, वो अपने में से इलेक्शन करके, अपने में से डिसाइड करके राज्यसभा, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंसी बनी होती है, 3 अलग अलग ऑर्गन। ओके, सो लोकसभा में से ही लोग अपने विद इन द मेंबर, जैसे देखो क्लास के अंदर से, फॉर हमारी ज्ञान मंजरी स्कूल में आपके 8, 9, 10 के क्लासेस हैं। ठीक है। अब 8, 9, 10 ABCD ABCD ABCD, ओके, 4, 3 12 क्लासेस हुए। अब एक क्लास में से हम 2 मॉनिटर चॉइस करते हैं। मॉनिटर हमने कैसे चॉइस किया? लोकसभा समझा रही होगी आपको। हमने क्लास में इलेक्शन किया और जिसको मेजोरिटी मिली, ऐसे 2 लोगों को हमने क्लास में से पसंद किया। सो 8th ABCD, 9th ABCD, 10th ABCD, सो 12 क्लासेस है। और पर क्लास हमारे पास कितने मॉनिटर हो गए? 2। सो 12 2 24। सो ये ऐसे हो गया। 24 हमारे टोटल मिनिस्टर्स है, कैप्टन है। अब वो 24 कैप्टन है, वो आपस में अपना काम डिसाइड करते हैं। उसकी भी एक सुपर एसोसिएशन बनता है। ठीक है, वो अपना एक अलग। अब वो 24 में से 6 लोग ऐसे डिसाइड होते हैं जो ओवरऑल मॉनिटरिंग करते हैं। उसी तरह से राज्यसभा के मेंबर भी इसी में से इलेक्ट होते हैं। सो टोटल सीट कितनी है लोकसभा की? 545 और राज्यसभा की याद रखनी है 250। गुजरात का रिप्रेजेंटेशन है 11 सीट इन द राज्यसभा एंड गुजरात का है इन लोकसभा में, गुजरात का है 26 सीट एंड यहाँ पे है 11। लोकसभा जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी में से राज्यसभा के मेंबर को भी चुना जाता है, उसी में से चुना जाता है। तो उतना रिप्रेजेंटेशन है टोटल 250। गुजरात की है 11 सीट। लोकसभा मतलब लोअर हाउस। लोअर हाउस में वही लोग होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। सो टोटल सीट है 545। गुजरात रिप्रेजेंटेशन इज 26। राज्यसभा जिसको कहा जाता है अपर हाउस टोटल सीट 250। गुजरात रिप्रेजेंटेशन इज 11 सीट। So the Lok Sabha is known as the lower house and the Rajya Sabha is known as the upper house. So parliament think is Lok Sabha, Rajya Sabha and president. And
बनती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा मतलब लोअर हाउस, टोटल सीट 545, गुजरात रिप्रेजेंटेशन इज 26 सीट्स। लोकसभा, लोअर हाउस, टोटल सीट 545, गुजरात रिप्रेजेंटेशन इज 26 सीट। राज्यसभा मतलब अपर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, टोटल सीट 250, गुजरात रिप्रेजेंटेशन इज 11। राज्यसभा अपर हाउस, टोटल सीट 250, गुजरात को मिली हुई सीट है 11। और तीसरा जरूरी अंग है उसका प्रेसिडेंट। सो पार्लियामेंट, जब हम बोलते हैं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का मतलब हम ये तीन चीजें साथ में कंसीडर करेंगे। जब मैं बोलती हूँ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट मतलब उसमें लोकसभा की भी बात आएगी, राज्यसभा की भी बात आती है और प्रेसिडेंट की भी बात आती है। सो लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट इन रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पहले क्या है वो तो समझना पड़ेगा, फिर वो क्या काम करती है वो समझेंगे। सो पार्लियामेंट जब हम बोलते हैं, द टर्म व्हेन वी यूज पार्लियामेंट, इट मींस लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा का दूसरा नाम है लोअर हाउस, लोकसभा सेकंड नेम इज द लोअर हाउस, टोटल सीट इज 545, गुजरात सीट एलोकेशन जो है दैट इज 26 सीट। राज्यसभा मींस अपर हाउस, टोटल सीट मिली है 250, गुजरात का रिप्रेजेंटेशन है 11 सीट। प्रेसिडेंट, ओके, सो दिस इज द थ्री मेन ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट, और ये तीनों चीज बनके मिलके बनता है पार्लियामेंट। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? सो द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस इन द सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 15th of August we got independence। 1947 15th August को जब हमें आजादी मिली, उसके बाद we become the democratic country and फिर पार्लियामेंट को बनाया गया था। So it is a post independent in the symbol of parliament। क्यों बनाया गया? In symbol of trust of the people of India। So underline, I am talking on page number 48, last paragraph. The Indian Parliament formed post-independence is the symbol of trust of the people of India. Now the main feature of decision making. Now see, very important point. The main feature of decision making in a democracy are people consent and their participation in our system of governance. The parliament enjoyed complete power since they comprise the elected representative of the nation. Now law making, पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन हमने आगे पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये कायदा बनाने की काम करती है, लॉ मेकिंग बॉडी है। सी द मेन फीचर ऑफ डिसीजन मेकिंग, सबसे पहला काम क्या है? डिसीजन मेकिंग। सो द मेन फीचर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका अच्छा हो। ठीक है, हम हमारा लीडर खुद चुनते हैं, इलेक्शन होते हैं, पर उसको सिलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट कौन करता है? हम लोग करते हैं। ठीक है, सो द मेन फीचर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी आर पीपल कंसर्न एंड देयर पार्टिसिपेशन, लोगों की भलाई के लिए, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सो अल्टीमेटली द पावर लाइज विद द कॉमन मैन, और संसद के अंदर लोगों का डिसीजन मेकिंग, लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग वहां पे किया जाता है। सो द मेन फीचर ऑफ डिसीजन मेकिंग in a democracy are people concerned and their participation in our system of governance। the parliament enjoy the complete power, parliament के पास complete power है। parliament means what? lok sabha, rajya sabha, president। parliament means what? lok sabha, rajya sabha,
प्रेसिडेंट, तीनों को मिला के पार्लियामेंट कहा जाता है, समझना है। पार्लियामेंट मतलब सिर्फ लोकसभा नहीं, सिर्फ राज्यसभा नहीं, पर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ना सिर्फ प्रेसिडेंट पावर में है, नो, सिर्फ राज्यसभा नो, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट नो, बट तीनों मिलके पार्लियामेंट कहा जाता है। सो पार्लियामेंट एंजॉय द सुप्रीम पावर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। Parliament enjoy the supreme power since it comprise the elected representative of the nation। अब लोकसभा में कौन बैठा है? जिसको हमने वोट किया है। राज्यसभा में भी कौन है? इसी में से इलेक्टेड मेंबर है। सो अल्टीमेटली सी लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्टेड है, जिसने हमने जिसको डायरेक्ट वोट किया वो लोग लोकसभा के मेंबर कहा जाता है। लोकसभा में से लोग अपने कैप्टन, अपने मेंबर्स चुनते हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये लोग भी इलेक्टेड है और प्रेसिडेंट भी ये लोग सिलेक्ट करते हैं। सो अल्टीमेटली इसके जो भी मेंबर है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो किसकी चॉइस है? कॉमन मैन, हमारी चॉइस है। ओके, सो सी दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अंडरलाइन कर लो, आईएमपी लिख लो। So the Indian Parliament formed post independence in the symbol of trust of the people of India, first point. Then the main feature of decision making, इसका काम क्या है? Decision making. What is the work? It's to take a decision. So the main feature of decision making in a democracy are people concerned and their participation in our system of governance। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इनका काम है। द पार्लियामेंट इंजॉय द कंप्लीट पावर, क्या है? पार्लियामेंट इंजॉय द कंप्लीट पावर सिंस इट कंप्राइज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन। कंप्लीट पावर है। क्यों कंप्लीट पावर है पार्लियामेंट के पास? क्योंकि ये यहाँ में जो काम करने वाले लोग हैं, इसको हमने चुना है, हमारा लीडर बना के काम करने के लिए भेजा है। सो ये सब सेवक है, दे आर द सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। चाहे वो लोकसभा मेंबर है, आइदर दे आर द राज्यसभा मेंबर और द प्रेसिडेंट, दे आर द सर्वेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ओके, एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। दिस आर डायरेक्टली इलेक्टेड। इज दिस क्लियर? दिस कंसेप्ट इज क्लियर स्टूडेंट्स? Now Parliament function as a stated below। अब उसको काम क्या करना है? So what is the work of the Parliament? अब Parliament मतलब क्या? If anyone asks any time, आंख बंद करके नींद से भी खड़ा करके कोई पूछे तो अब आना चाहिए। What is a Parliament? Parliament means लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा other name is a lower house, total seat 545, गुजरात का रिप्रेजेंटेशन है 26। लोकसभा लोअर हाउस 545, गुजरात 26। राज्यसभा अपर हाउस टोटल 250, गुजरात 11 सीट। And the president. Now parliament function as stated below. What is the work? So to control the government and provide information and guidance to it. So what is the work? Parliament का work क्या है? So to control the government. Now see, control the government। अब गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है। कंट्रोल द गवर्नमेंट and to provide information and guidance। सी पहला वर्क क्या है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल द गवर्नमेंट।
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करना है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कौन कंट्रोल करता है? पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी इज अवर प्रेसिडेंट, बट इट डजंट मीन कि ही इज द सोली पावरफुल और उनसे बड़ा कोई नहीं, वो जो चाहे कर सकते, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट इज कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट, उसको कंट्रोल कौन करेगा? पार्लियामेंट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सबसे पहला काम क्या करेगा? गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी। Whatever the information they require, it is provided by parliament. देश को कैसे चलाना है, laws, regulation, rules के बारे में who will decide, who will inform? It is the function of parliament. So to control the government, what is the first word? To control the government and to provide. What to provide? क्या देगा? Information and guidance. So to control the government, to provide the information and guidance to it. This is the function of parliament. Now to make the laws, this is the important. To make laws and make amendment. Amendments in that. अब देखो क्या काम है पार्लियामेंट का। सबसे पहला काम क्या है? गवर्नमेंट टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। अब दूसरा काम क्या है? टू मेक द लॉज। जैसे ड्यू टू पैंडेमिक, since 1.5 year we are like entire world is facing the corona pandemic. In India we have the 3 month complete lockdown. तो ये कौन डिसाइड करता है? अब कायदा बनाना, से फॉर हेलमेट इज इम्पॉर्टेंट, हेलमेट इज अ कंपल्सरी, टायर सीट बेल्ट इज कंपल्सरी। ओके, रूल्स और रेगुलेशन भारत में कौन से कायदे बनेंगे वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? टू मेक अ लॉज एंड मेक अमेंडमेंट। उसके अंदर कोई जरूरी चेंजेस होते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस एज वेल इज रिक्वायर्ड, उसके अलग अलग प्रावधान, अलग अलग चेंजेस, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, कायदों में चेंज करना। अब जो अंग्रेज के जमाने के जो कायदे थे वो तो अब नहीं चल सकते, तो उसके अंदर चेंज करना, नया ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, अमेंडमेंट करना, सुधारो, जिसको गुजराती में आप कहेंगे चेंजेस करना, मॉडिफाई करना। सो दिस इज आल्सो द वर्क ऑफ पार्लियामेंट। सी, टू मेक अ लॉज एंड मेक अ अमेंडमेंट इन दैट, to make a law and make a amendment in that. See, this is the very important point. What is the work of parliament? Parliament function in a of a stated below. To uske work basically to control the government and to provide the information and guidance to it, and to make a law and make a amendment in that. This is the basic function of parliament. इसीलिए पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाता है, या तो जिसको हम कहेंगे पार्लियामेंट एंजॉय द कंप्लीट पावर। क्योंकि कंप्लीट पावर क्यों है? क्योंकि कायदा बनाता है, ये उसके अंदर चेंजेस करता है, इट्स कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू गवर्नमेंट। So in this sense, Parliament is a supreme institute, or it is having the complete power. Parliament means what? Lok Sabha, Rajya Sabha, President. Lok Sabha, Rajya Sabha, President. Parliament मतलब संसद, संसद मतलब क्या? लोक सभा, राज्य सभा, राष्ट्रपति। लोक सभा, राज्य सभा, राष्ट्रपति। लोक सभा का दूसरा नाम है लोअर हाउस। लोकसभा, लोअर हाउस, टोटल सीट 545,
उसमें से गुजरात को कितनी सीट मिली है? 26। राज्यसभा मतलब अपर हाउस, राज्यसभा मतलब अपर हाउस, टोटल सीट 250। गुजरात को मिली है 11 सीट राज्यसभा की और प्रेसिडेंट। जब हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो पार्लियामेंट एक वर्ड बोलते हैं, पर उसका मतलब हम तीन चीजें साथ में मिला के सोचनी है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ओके, अब पार्लियामेंट फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? पार्लियामेंट तो बोल दिया, सुप्रीम इंस्टीट्यूट है, समझ में आ गया। इट इज हैविंग द सुप्रीम और द कंप्लीट पावर। क्यों ऐसा है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या करती है? अब इससे आप कनेक्ट करो कि हम जिसको अपना लीडर चुनते हैं वो क्या काम करते हैं? वो लोकसभा में जाएंगे। लोकसभा में उनका काम क्या है? कंट्रोल द गवर्नमेंट। अब लोकसभा में कौन गया? जिसको हमने चुना, वो क्या काम करता है? कंट्रोल द गवर्नमेंट। सो इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल किया उसको? सिटीजन। सो दिस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। यही एसेंस डेमोक्रेसी की एक खुशबू है, उसका पॉजिटिव पॉइंट है। इनडायरेक्टली रूल किसका हुआ? कंट्रोल किसका हुआ? गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कंट्रोल द गवर्नमेंट। कंट्रोल कौन करेगा? उसके मेंबर। वो मेंबर कहाँ से आए? जिसको हमने इलेक्ट किया। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका हुआ? लोगों का। So the control the government and provide the information and guidance to it and to make a laws, कायदे बनाने हैं and make a amendment in them as required। उसके अंदर changes भी कौन करेगा? उसके अंदर changes कौन करेगा? पार्लियामेंट। ओके, now this point are clear to you all? ओके, जो आज का होमवर्क लिख लो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इन नेक्स्ट लेक्चर आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट द लोकसभा एंड राज्यसभा वेरी डीपली। दिस आर द बेसिक कंटेंट एंड concept that what we are discussing, but we need to understand very deeply all this point. So just write Parliament. How is the parliament formed? So write a short note on parliament. पार्लियामेंट के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। Again, take a quick revision what we have discussed. Parliament means what? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा means what? लोअर हाउस। टोटल नंबर ऑफ सीट 545, जिसमें से गुजरात का रिप्रेजेंटेशन है 26 सीट। 545, 26 लोकसभा, लोअर हाउस। राज्यसभा मतलब अपर हाउस। अपर हाउस टोटल सीट 250, गुजरात रिप्रेजेंटेशन इज 11। और आप याद क्या रखना है? द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद उसको बनाया गया है। इन द सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के विश्वास को जीतने के लिए और विश्वास को कायम करने के लिए, एज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। The main feature of decision making in democracy are people concerned of their participation. Ultimately, democracy means what? By the people, for the people, of the people. So, in our system of governance, the parliament enjoy the complete power. In a democracy or in our country, who enjoy the complete power? किसके पास supreme या तो complete power है? With the parliament. And what is the work of the parliament? Parliament control the government and provide information and guidance to it. To it मतलब किसको? गवर्नमेंट को। वो कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देती है और गवर्नमेंट को गाइडेंस भी देती है। एंड टू मेक अ लॉ एंड मेक द अमेंडमेंट इन दैट, कायदा बनाना, कायदों के अंदर चेंजेस
जो भी चेंजेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो कहाँ से होता है? पार्लियामेंट। सी आई कैन गिव यू वन एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम दिस। जम्मू कश्मीर को स्टेट में से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ओके, सो अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है। नाउ वी आर हैविंग 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी एंड सिटी। सो जम्मू कश्मीर को राज्य में से यूनियन टेरिटरी किसने बना दिया? कहां से कायदा पास हुआ होगा? पार्लियामेंट से। अब वहां में जो अलग चेंजेस हो गए, नए कायदे वहां पे इंपोज किए गए, वो कहां से डिसीजन हुआ होगा? पार्लियामेंट में से। भारत में कोई भी नया कायदा आता है, कोई भी नया बिल पास होता है, वो कहां से होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स व्हाट? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। मतलब तीनों की सहमति से काम होता है। ना अकेला डिसीजन लोकसभा में से होता है, ना राज्यसभा से होता है, ना ही प्रेसिडेंट अकेले डिसीजन लेते हैं। तीनों मिलके, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीनों मिलके डिसीजन लेते हैं। इट इज अ डिसीजन मेकर बॉडीज, लेजिस्लेटिव है। एंड हाउ दे वर्क एंड दे फंक्शन अकॉर्डिंगली। नाउ आई थिंक very one or 2 point only we have discussed. One we discussed about the parliament and parliament function. In next lecture I want to discuss with the how is the Lok Sabha. Lok Sabha is important, so powerful है. So Lok Sabha form, then the house of the ruling party. Ruling party कैसे form होती है? Then we will talk about the Rajya Sabha and work and that. लोक सभा और राज्य सभा के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इवन प्रेसिडेंट पर अभी आपके 8th क्लास में ये नहीं आ रहा है, but Lok Sabha और Rajya Sabha, how this form, how this work. So we will discuss in next lecture. Till that, please read it. आपको पता होना चाहिए पहले लोकसभा का स्पीकर कौन थे, राज्यसभा के चेयरमैन कौन थे, अभी कौन है। If you remember, मैंने क्लास 6 और 7 में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में ये करवाया हुआ था। ओम बिरला हमारे स्पीकर है, इसके बारे में मैंने आपको लिखवाया हुआ है। So who is the speaker? Who is the chairman of Rajya Sabha, total seat, ये सब all are the basic information that you should know. स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद होती है, इसके बारे में डिटेल में हम later we will discuss. But this all are the basic information. As a citizen of the country, we should know it. Okay? So here I am ending up this lecture. Please read again this lesson. As I am telling you, this is not important only for class 8, पर यही सब चीजें आपको 9, 10, 11, 12 and for your further life basic information है, ये आपको पता होनी ही चाहिए and it will help you a lot in your further study. So please take in that consideration और अच्छे से याद कर लेना है. Okay? So take care, thank you and goodbye.